हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आयुष कुमार लाइफ चैनल। आज है 5 जून और आज हम एक मोनोलॉग में हैं वेयर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट वाटरफॉल मेथोलॉजी वर्सेस अजाइल मेथोलॉजी। बोथ ऑफ देम होता क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी कैन जंप इनटू द वीडियो, बट बिफोर गेटिंग स्टार्टेड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल टू सपोर्ट द चैनल एंड सपोर्ट मी एंड मोटिवेट मी. So let's get started. So starting with waterfall model, basically both होते क्या हैं. waterfall and agile is a management methodologies जो define हुए हैं for any project. Either it can be a corporate project or it can be a business or it can be a government project, anything जहाँ भी आपको एक planned way में एक process execute करना है, you need a model, either waterfall or agile. So what are both? So starting with waterfall model, what happens is waterfall is a linear and old, like not old, but yeah, it's a previously used, like used in long time. It's a more linear and sequential model where everything is planned step by step. So for sake, like for example, if you want to do something, if you want to develop a project, if you want to achieve something, so when you start with the planning itself ki this amount of time will be taken for this step, and then we'll jump to next step, then we'll do testing, then everything is defined. So that is the rigidity and linearity of waterfall model. But many a times it's been felt that this sequential motion of the project or the movement of the work is not very useful. तो sequential model को replace करने के लिए then agile develop हुआ. Agile is a well known methodology in project management, and इसमें क्या है, it's very flexible actually. It's not well planned, but it is planned, but it is also evolving at every step. It follows a feedback loop. Like you completed step 1, you reach to step 2, but the results that you want does not come what you desired for. So you cannot process further on the feedback that step 2 is like a slightly deviated than what planned. Based on the feedback, the loop will come again to step 1 and it will make changes according to step 2, so it can get desired results. तो ये एजाइल मेथोडोलॉजी होती है विच इज़ मोर फ्लेक्सिबल. अब दोनों के बेनिफिट्स कहाँ यूज़ होते हैं. तो बेसिकली अगर आप स्मॉलर प्रोजेक्ट्स देखें जहाँ पे मतलब ज़्यादा आपको प्लानिंग और पीपल्स में ज़्यादा आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, वहाँ पे आपको वाटरफॉल मॉडल लगेगा, बिकॉज इट डज़ नॉट रिक्वायर, इट्स लाइक ईजी टू मेंटेन, ईजी टू मैनेज, और बहुत ट्रेडिशनल है, तो बहुत सिंपल वे में प्लान होता है. एजाइल ऑन द अदर हैंड इज़ अ बिट कॉम्प्लेक्स थिंग. वहाँ पे आपको SMEs चाहिए होते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, बिकॉज व्हेन यू आर टेकिंग अ फीडबैक लूप, you need someone who is an expert on that to make decisions. So वो decision maker should be a subject matter expert. तो वहाँ पे SMEs चाहिए होते हैं. So ये थोड़ा complex होता है, but in bigger project where you cannot predict what will be the outcome of the planned way, वहाँ पे basically agile development use किया जाता है. अब इसको example से कैसे समझ सकते हैं? I'll tell you. Like if you take government policies, which is made, it is made in a sequential manner. Like a disinvestment of PSUs is been announced in sequential manner कि 2022 तक इतना करना है, 2024 तक इतना करना है. So this is waterfall model कि हमारा प्लान है कि इस टाइम तक हम इतना डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे. या पेटीएम ने एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बोला, तो दे प्लान फॉर 10 years और इतने 1000 करोड़ सिक्वेंशियली अलॉट करेंगे. दिस is what waterfall model basically is. Mostly all the government policies are made on waterfall, like sequentially, they are well designed. तो वो सारे इसलिए ऐसे हैं क्योंकि वो एक प्रोसेस में फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, वहाँ पे आपको कुछ एक ये नहीं चाहिए, आपको इम्प्रूवमेंट नहीं चाहिए या फिर एवोल्यूशन नहीं चाहिए. वो एक प्रोसेस है जो ऐसे यूज़ होता है. तो दैट इज़ वाटरफॉल. बट ऑन द अदर हैंड, during the COVID outbreak, right,
वहाँ पे आपने जो पॉलिसीज़ बनती देखी, दैट वाज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ एजाइल मैनेजमेंट। वहाँ पे जितने भी फाइनेंशियल डिसीजन हुए वो बजट प्लान नहीं थे, वो कंडीशन को देखते हुए लिए गए। अगर आप बात करें व्हाट आर द कंडीशन, जैसे कि जो क्रेडिट्स अनाउंस किए गए कि एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए क्रेडिट लाइन, एक सीरीज ऑफ क्रेडिट लाइन ऑफ 1000 करोड़ अनाउंस किए गए। दैट वाज अ डिसीजन मेड बाय टेकिंग द सिचुएशंस ऑफ एमएसएमई। फिर हर स्टेट की जो कैप थी, जो लिमिट थी बोरोइंग की फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द बैंक्स, उसको 5 to 10% बढ़ाया गया था। एग्जैक्टली आई डोंट नो व्हाट वाज द नंबर, लेकिन बढ़ाया गया था। दैट वाज नॉट प्लान ऑफ द बजट, दैट वाज इवॉल्व विद सीइंग द सिनेरियोज ऑफ कोविड आउटब्रेक। सिमिलरली बहुत सारे वेलफेयर स्कीम्स चलाए गए थे जो प्लान नहीं थे, जो 5 साल में प्लान नहीं थे, जो गवर्नमेंट की जो डिसीज़न में थे नहीं थे, लेकिन वो इवॉल्व किए गए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत थी उसकी। सो दिस इज़ एजाइल मेथोडोलॉजी जो आपको गवर्नमेंट पॉलिसी से बताया। एजाइल के भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं कि आपको एसएमईज चाहिए होता है, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, और बड़े प्रोजेक्ट में फीजिबल होता है, छोटे प्रोजेक्ट में उतना आपको रिसोर्स यूज़ करना, उतना प्लानिंग करना वो फिजिबल नहीं होता है, तो उसमें वाटरफॉल लेते हैं। और अनटिल अनलेस आपको कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट डिलीवर करना है क्लाइंट को, जो इवॉल्विंग हो, जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, तो आपको एजाइल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको वाटरफॉल सिंपल, अगर आपका एक प्री प्लान प्रोसेस है जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं, तो आप वाटरफॉल ही फॉलो करिएगा। सो दीज आर 2 मेथोडोलॉजीज, वाटरफॉल एंड एजाइल. Please let me know in the comment section how do you like it, or if you have any question, or if you want to suggest what kind of videos in future I should make, तो आप अपने सजेशन दे सकते हैं, मैं उस तरह के वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको ये पसंद नहीं है, आपको अगर कुछ और चीज़ों में वीडियोस चाहिए, I'll definitely make it. Please comment down below. Please like and subscribe to the channel. That will really help. Thank you so much for watching. This is Ayush Kumar signing off.